नेक्स्ट है रेप ऑन वर्जिन। एनी ब्रूजिंग, लेसरेशन या स्वेलिंग वल्वा की नोट करेंगे। लेबिया फिर ओपन करेंगे बाय जेंटल ट्रैक्शन इन ऑर्डर टू एग्जामिन द हाइमेन फॉर द रप्चर। लेसरेशन इस स्ट्रक्चर की जो है वो होती है इन द फर्स्ट इंटरकोर्स, और वर्जिन में ये जो है प्रिंसिपल एविडेंस होता है ऑफ द क्राइम। कैरेक्टर और एक्सटेंट ऑफ इंजरी जो है ना वो वेरी करेगा डिफरेंट केसेस में, डिपेंड करता है अपॉन द नेचर ऑफ द हाइमन, disproportion between the male and female parts, extent of penetration, and amount of force used. With the first intercourse, tearing of the hymen usually occur posteriorly at one or other side or in the middle. Semilunar hymen often rupture करेगा on the both sides. Annular hymen जो है वो nearly close up करता है at the vaginal orifice, suffer several tears. फोर्शर जो है वो टॉर्न होगा और फोसा नेविकुलरिस डिसअपीयर हो जाएगा। इवन पोस्टीरियर कमीशियर भी रप्चर हो जाएगा। लेटर इंजरी जो है वो यूजुअली डज नॉट अकर इन कंसेंटिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स अनलेस देयर इज मच डिसप्रोपोर्शन बिटवीन मेल एंड फीमेल पार्ट्स। सून आफ्टर द एक्ट द टोन जो मार्जिन होंगे वो शार्प होंगे, रेड होंगे और ब्लीड करेंगे ऑन टच। इवन जब एग्जामिन करेंगे 3 से 4 दिन के बाद ऑफ द ऑफेंस, एजेस जो होंगी ना लेसरेशन की वो कंजेस्टेड होंगी और स्वॉलन होंगी। सराउंडिंग जो टिश्यू है वो भी स्वॉलन होगा और टेंडर होगा। विथ वॉलेंट इंटरकोर्स जो लेसरेशन होती है विजाइनल वाल की वो इनवेरिएबली होगी पोस्टीरियरली या स्लाइटली पोस्टीरियरली। गेट वो ब्रॉड बेस्ड होगा और पेनफुल होगा। इनडेसेंट असॉल्ट में ड्यू टू द डिजिटल पेनिट्रेशन लेसरेशन जो है वो यूजली सिंगल होगी और वो लेटरल हो सकती है और वो ऑफन इनकम्प्लीट होगी। रेप ऑन सेक्सुअली एक्टिव वुमेन एंड वुमेन हु हैव हैड कंसीडरेबल इंटरकोर्स इवन विदाउट चाइल्ड बर्थ, हाइमन जो है वो कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाता है। विजाइनल ओरिफाइस डायलेटेड होती है और म्यूकस मेम्ब्रेन रिंकल्ड एंड थिकन्ड। रेप ऑन अ मैरिड वुमेन एंड द फीमेल्स हु हैव हैड प्रीवियस इंटरकोर्स cause little or no damage to the parts unless considerable violence is used. However, marks genital injury के भी देखे जाएंगे for since rape is generally associated with greater violence than the consensual sexual intercourse. In the absence of genital injury तो presence signs of violence के बाकी body parts पे दिखेंगे और presence spermatozoa की vagina में या फिर clothes में from the chief evidence of the crime देखेंगे. It must be remembered that in a normal sized adult female, severe genital injuries usually result from insertion of objects other than the penis, and they are indicative of sadistic या masochistic sexualism other than the coitus. ये फिगर देखिए, इसमें एडल्ट फीमेल है, victim of sexual assault and murder. Underclothes are missing. Abrasions and bruises are seen on inner thighs and legs. Vagina is swollen and congested. She was murdered after the act. Next is rape on children. In young children, as the vagina is very small and hymen deeply situated, the adult penis cannot penetrate in it. रेयर केसेस में ग्रेट वायलेंस जो है वो द ऑर्गन जो है फोर्सबली इंट्रोड्यूस होगा तो रप्चर हो जाएगा वैजाइनल वॉल का और एसोसिएटेड विजरल इंजरीज हो सकती हैं। तो इस तरह की इंजरीज जो है रिजल्ट करेंगी डेथ में। यूजुअली वायलेंस जो है वो यूज़ नहीं होती और पेनिस प्लेस्ड आइदर विद इन द वल्वा और बिटवीन द थाइज, एंड एज सच ओनली रेडनेस एंड टेंडरनेस ऑफ द वल्वा में बी कॉज्ड। Hymen is usually intact. Many charges of the rape में या attempted rape में since victim is usually a child, the presence of a discharge from the vagina due to the gonorrhea या inflammation of the parts is only cause of suspicion. There may be no sign or very few signs of the general violence since the child has no idea of the act and is also unable to offer resistance. इसमें है rape of a girl of 9 years. Note the tear of the perineum and blood flowing out from the tear. Next, the presence of the spermatozoa and other microorganisms. Normally, sperms remain relatively motile in the vagina for about 6 to 8 hours and occasionally 12 hours. Non-motile forms जो है वो detectable होंगी for about 24 hours with occasional report 48 to 72 hours and very rarely 96 hours. Motility persists करती है longer at the body temperature. Sperms remain motile in uterine cavity for 3 to 5 days तक. जो नॉन मोटाइल फॉर्म्स होती हैं वो फाउंड होंगी इन द फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट फॉर वीक्स और मंथ या इवन आफ्टर डेथ. टू डेमोस्ट्रेट द प्रेजेंस ऑफ स्पर्म्स द वेजाइनल कंटेंट जो है वो एस्पायरेट करेंगे बाय मीन्स ऑफ ब्लंटेड एंडेड पिपेट. ब्लंट एंडेड पिपेट और वेट प्रिपरेशन बनाएंगे ऑन द स्लाइड और एग्जामिन करेंगे अंडर द माइक्रोस्कोप फॉर द मोटाइल स्पर्मेटोजोआ. अगर मोटाइल स्पर्म्स देखे जाएंगे तो इट मीन्स द इंटरकोर्स हैज टेकन प्लेस विद इन अबाउट 12 आवर्स. लेकिन अगर वो नॉन मोटाइल है तो इट इज़ नॉट पॉसिबल टू से एग्जैक्टली व्हेन इंटरकोर्स टुक प्लेस एक्सेप्ट that it may be over 12 hours and within about 24 to 48 hours और कभी कभार 72 hours. Intact spermatozoa are rarely found in the vagina after 72 hours after coitus.
इस तरह के केस में स्पर्म हेड एंड टेल कैन बी सेपरेटली डेमोन्स्ट्रेटेड बाय यूजिंग द पिक्रो इंडिगो कार्मीन, जो स्टेन करता है स्पर्म हेड को रेड और टेल को ग्रीन और रेड। तो सिमेर जो है वो बनाएंगे फ्रॉम द वेजाइनल कंटेंट फिक्स्ड बाय द जेंटल हीट एंड स्टेन्ड बाय जेल नेल्सन मेथड, और एग्जामिन करेंगे फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्पर्मेटोजोआ एंड स्मैग्मा बेसिलाई। स्पर्म्स की एब्सेंस इन द वेजाइना जो है इसका मतलब नहीं है कि सेक्सुअल इंटरकोर्स नहीं हुआ। इट मे बी ड्यू टू नॉन इमिशन या एस्पर्मिया भी हो सकती है, प्रीवियस वेजेक्टोमी, वेरी ओल्ड एज या पुअर टेक्निक बाय द एग्जामिनिंग डॉक्टर। डिटेक्शन सेमिनल फ्लूइड की फ्रॉम द वेजेक्टोमाइज्ड मेल रिक्वायर करता है डेमोन्स्ट्रेशन प्रोस्टेटिक एसिड फॉस्फेटेज की, जो कि क्वालिटेटिवली डिस्टिंग्विश करता है फ्रॉम द वेजाइनल एसिड फॉस्फेटेज बाय इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्वांटिटेटिवली जो नॉर्मल लेवल होता है ना एसिड फॉस्फेटेज का वेजाइना में वो 340 IU होता है पर लीटर। ये बढ़ जाता है अबाउट 3000 IU 2 to 3 आवर्स आफ्टर द इंटरकोर्स और ग्रेजुअली रिटर्न करता है टू नॉर्मल 12 से 24 घंटों के अंदर। कोई भी लेवल हायर देन 340 इंडिकेट करता है कि सेमिनल फ्लूइड है। एज अ रिजल्ट डिस्कवरी सीमेन स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन P30 की एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट जो है ना वो सिर्फ यूज़ होता है एज अ स्क्रीनिंग टेस्ट। P30 प्रेजेंट होता है दोनों नॉर्मल और एस्पर्मिक मैन दोनों में होता है। ग्रेव्स एट आल फाउंड दैट इन सम इंस्टेंसेस P30 टेस्ट पॉजिटिव हुआ जब एसिड फॉस्फेटेज टेस्ट नेगेटिव था। P30 जो है वो डिटेक्टेबल होता है वेजाइनल फ्लूइड में फॉर मीन पीरियड 27 आवर्स तक आफ्टर द इंटरकोर्स एज़ कम्पेयर टू द 14 आवर्स के लिए जो सिर्फ एसिड फॉस्फेटेज होता है। तो ये मतलब 27 आवर्स तक भी डिटेक्ट हो सकता है, लेकिन एसिड फॉस्फेटेज सिर्फ 14 आवर्स। इफ़ सीमेन इज़ आइडेंटिफाइड determining of genetic marker, if need be, can be done by enzyme studies and DNA typing. Swabbing of the mouth, vagina, urethra and anus for the sperm detection should always be performed on rape victim. Presence magma bacilli suggestive of coitus, इसकी absence जो है without any significance है। magma bacillus देखा जाता है acid fast rod shaped organism जो thicker होते हैं than the tubercle bacillus।